Hello students, good afternoon all of you. Okay student, welcome to English class. This is your English monsoon book and I opened page number 33 of unit 5, the Cold War. Well children, in yesterday's video we did listening test and question answer. So today we are going to read this story, but firstly we will do read topic. So firstly we will write date. Today is 29 July 2020 and classwork. Other side we will write classwork. Okay, let's start. Do you sometimes quarrel with your friends? Quarrel it means झगड़ा करना. क्या आपने कभी किसी टाइम अपने फ्रेंड के साथ कभी कोई लड़ाई की है, कोई झगड़ा किया है? अगर किया है तो हाउ डू यू मेक अप विद हिम हर, तो फिर उसके साथ दोस्ती फिर से कैसे बनी आपकी, कैसे बनाते हो अगर आपने कभी अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई की है तो. ये वेल चिल्ड्रन, ये तो आपको खुद करना था वैसे, पर मैं इस वीडियो में आपको करके बता देती हूँ. वैसे योर आंसर इन में वारी, अगर आप अपनी तरफ से कोई और आंसर राइट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, बट सही होना चाहिए. So I am going to write this answer. I sometimes fight or quarrel with my friend. आप यहाँ पे आंसर राइट कर सकते हो. स्पेस कम है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से राइट करती हूँ. यहाँ से ही करिएगा आप भी. I sometimes fight और फाइट भी राइट कर सकते हैं, क्वेरल भी कर सकते हैं. Fight with my friend later I go and say sorry. And we make up. And we make up. यही करते हैं ना आप भी. पहले तो अपने फ्रेंड से लड़ाई कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद या तो आप जाके सॉरी बोलते हो या फिर आपका फ्रेंड आके आपके साथ सॉरी बोल के पैचअप कर लेता है. Is it it? So now I'm going to read this story. So listen carefully and try to learn कि कैसे आपको रीड करना है, ये आप सीखेंगे. Okay? So listen carefully. A lion and a tiger were once the best of friends. The two lived together in a cave at the foot of a great mountain. The friends would hunt together and share their food. The lion and the tiger lived in a great peace. One day it so happened that a dispute arose. Dispute arose, it means dispute का मीनिंग आप लिख सकते हैं तर्क यानी रीज़न, कारण. Arose it means पैदा हुई. Said the lion, "It is cold during the day,"
said the tiger. It is cold during the night. Since each felt he was right, the two began to argue. Soon they were quarreling and were about to come to blows. Quarreling it means यहाँ पे भी आप मीनिंग राइट करेंगे झगड़ा. ओके and were about to come to blows. The lion roared loudly in anger. The tiger growled back. Come to blows it means लड़ने लगा. मैं आपको लास्ट में हिंदी भी बताऊंगी स्टोरी की. पहले आप इंग्लिश में लिसन करिए कि कैसे आपको रीड करना है. As it happened, जैसे ही हुआ, ये सब हुआ उनके बीच. दी बुद्धिस्त्वा होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानकर और एक साधु के रूप में, जो बुद्धिस्त्वा धर्म के जो साधु होते हैं उन्हें कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के जो साधु होते हैं उन्हें बुद्धिस्त्वा कहते हैं. तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बौद्ध धर्म. Bodhisattva was living as a hermit. Hermit it means सन्यासी, साधु, या फिर आप कह सकते हैं एकांतवासी. साधु भी राइट कर सकते हैं, सन्यासी भी राइट कर सकते हैं. ओके in a cave not far away. As it happened, the Bodhisattva was living as a hermit in a cave not far away. Hearing the roars and growls, he at once went to see what was wrong. Now, why are you two friends quarreling? He asked the lion and the tiger. We are quarreling about the cold. I say it is cold during the day, said the lion. And I say it is cold during the night, said the tiger. Well, I say it is cold only when the wind blows. Pointed out the Bodhisattva. So, if the wind blows during the day, then it is cold during the day. If the wind blows at night, then it is cold during the night. So, as you are both right in what you say, I see no reason for you to quarrel anymore. This advice brought peace and the two were friends again. Well, children, आपको इंग्लिश में भी ये स्टोरी समझ में आई गई होगी, बट फिर भी मैं आपको हिंदी बता देती हूँ. इस स्टोरी में दो फ्रेंड होते हैं, लायन एंड टाइगर. बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और एक ही केव में अपना दोनों साथ में रहते हैं. एंड हंटिंग भी जो करते हैं, शिकार जो करते हैं, वो भी एक साथ करते हैं और अपना फूड भी शेयर करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो. ठीक है. और क्या होता है, एक दिन दोनों के बीच में एक लड़ाई का एक रीज़न पैदा होता है कि भाई ठंड के ऊपर इनकी लड़ाई होती है, कोल्ड के ऊपर, की जो दिन ठंड जो है दिन में होती है और लायन कहता है कि ठंड जो है दिन में होती है और जो टाइगर है वो कहता है कि नहीं, ठंड तो रात में होती है. तो ये उनकी लड़ाई देख के दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे, रोरिंग करने लगे, शाउटिंग करने लगे, ग्राउल करने लगे, भुनभुनाने लगे. एज इट हैपेंड, जैसे ये सब होता है इतने में द बुद्धिस्त्वा वॉज लिविंग एज अ हर्मिट इन अ केव नॉट फार अवे. एक सन्यासी, एक संत रहते हैं, उनके पास ही रहते थे
हर्मिट जिसे कहते हैं साधु, जो बुद्धिज्म धर्म के सन्यासी थे, संत थे, उनके केव से ज़्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने उनकी रोड की गरजने की और ग्राउल्स की आवाज़ सुनी, तो वो आकर देखने लगे कि ऐसा क्या था वहाँ पे, क्या हो रहा था। Then now why are you two friends quarreling? He asked the lion and the tiger. उन्होंने दोनों से क्वेश्चन किया कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने आंसर किया, वी आर क्वेरलिंग अबाउट द कोल्ड। हम ठंड के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि दिन में ठंड होती है, लॉयन बोलता है, और टाइगर बोलता है मैं कह रहा हूँ कि नहीं, रात में ठंड होती है। तो वही सन्यासी जो है, जो संत हैं, वो फिर उनको बताते हैं कि वेल आई से इट इज़ कोल्ड व्हेन द विंड ब्लोज। जो हवा जैसे बहती है उसके हिसाब से ठंड होती है। अगर हवा दिन में बहती है तो हवा ठंड दिन में है, और अगर हवा रात में बहती है तो ठंड रात में है। तो तुम दोनों की लड़ाई का कोई रीज़न नहीं है। वो उनको समझाते हैं, वहाँ पे सलाह देते हैं उनको, मतलब उनको लड़ाई से उनको बताते हैं कि लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं है और तुम्हारा कोई रीज़न ही नहीं है लड़ाई का। मेन रीज़न क्या है ठंड होने का? हवा जिस टाइम बहेगी उसी टाइम कोल्ड होगी। तो जो है ये उनकी बात वो दोनों समझ जाते हैं। एंड देन दिस एडवाइस ब्रॉड पीस एंड द टू वर फ्रेंड अगेन। और इस सलाह से दोनों में शांति आई और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। एडवाइस का आप मीनिंग राइट कर सकते हैं यहाँ पे। सलाह। ओके, पीस मीन्स शांति। वेल चिल्ड्रन, स्टोरी तो आपकी हो गई। एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ। यू विल डू योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। चैप्टर में से है, स्टोरी में से है। आप स्टोरी अच्छे से रीड करेंगे तो आप ये अपने आप ही फिल कर लेंगे। बहुत ईजी भी और इंटरेस्टिंग भी, आपको अपने आप ही आंसर मिलते चले जाएंगे। द लेक्चर इज़ ओवर। थैंक यू।